شیعہ دور نازک ہے بنے رہنا علی کے شیعہ تم خدا را نہ مفسر نہ قلندر ہونا تم خدا را نہ مفسر نہ قلندر ہونا اور اچھا لگتا ہے یہ انداز سخن ہم کو عروج میں بلا رہا ہوں اس طرح بلا رہا ہوں جی جی پڑھتے پھر میں کہ اچھا لگتا ہے یہ انداز سخن ہم کو عروج اور دوسرے شعر کا پہلے سے بھی بہتر ہوگا اللهم صل على محمد وآل محمد زندہ باد بھائی واہ 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 کیا انداز ہے بلانے کا بھائی واہ 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 کربلا کی فتح میں دو چار دینے اور ہیں کربلا کی فتح میں دو چار دینے اور ہیں تو کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں وہ حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے ملا کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں ملا کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں اچھا شعر ہے بھائی اچھا شعر ہے بھائی واہ زندہ باد کربلا کی فتح میں دو چار دینے اور ہیں کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے ملا کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں پچھلی محفل میں جو ہے وہ محفل میں ذکر بہت عالم نے کیا تھا تو اسی اس پہ جو 4 شعر بس یوں تو 39 دن بیکار تھی لشکر کی جنگ خیبر کا بہت ذکر ہوا تھا تو اسی پہ دیکھیے کہ یوں تو 39 دن بیکار تھی لشکر کی جنگ بعد ہوئے حیدر نے جیتی آخرت خیبر کی جنگ بعد ہوئے حیدر نے جیتی آخرت خیبر کی جنگ باب خیبر انگلیوں پر گھومتا آیا نظر باب خیبر انگلیوں پر گھومتا آیا نظر خود پیغمبر بول اٹھے یہ ہے میرے حیدر کی جنگ خود پیغمبر بول اٹھے یہ ہے میرے حیدر کی جنگ پوری دنیا کو سبق دیتی ہے شمشیر علی پوری دنیا کو سبق دیتی ہے شمشیر علی دیکھ لو حیدر کبھی لڑتے نہیں تیور کی جنگ دیکھ لو حیدر کبھی لڑتے نہیں تیور کی جنگ پوری دنیا کو سبق دیتی ہے شمشیر علی دیکھ لو حیدر کبھی لڑتے نہیں تیور کی جنگ میں ملاحظہ ہوں چوم کر پیشانی بشیر سرور نے کہا چوم کر پیشانی بشیر سرور نے کہا آج فوج شام سے ہوگی میرے اکبر کی جنگ آج فوج شام سے کربلا کے بعد پھر نوبت نہ آئی جنگ کی کربلا کے بعد پھر نوبت نہ آئی جنگ کی ظلم نے ہتھیار رکھے دیکھ کر سرور کی جنگ ظلم نے ہتھیار رکھے دیکھ کر سرور کی جنگ کیا کہہ رہے بھائی دنیا پیکر یتیم ظلم کا پیکر یتیم اور صبر کے پیکر حسین ظلم کا پیکر یتیم اور صبر کے پیکر حسین کربلا میں ہو رہی تھی تخت سے منبر کی جنگ ارے کیا کہتے ہیں کیا شعر پڑھا بھائی بہت پسند ہے بھائی کیا شعر ہے بھائی واہ 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 پھر سے پڑھیے بہت پیکر یتیم اور صبر کے پیکر حسین ماشاء اللہ بھائی میں ہو رہی تھی تخت سے منبر کی کیا کہنے بھائی بہت پسند ہے بھائی واہ واہ ایک شعر آنے والا نعرے سلوات آخری شعر عامر کیا کہ ٹیسٹ کا دو دفعہ ہو جائے در شب ہجرت نہ ہوتا جان کا خطرہ کہیں در شب ہجرت نہ ہوتا جان کا خطرہ کہیں کچھ مسلمان خوب لڑتے چادروں بستر کی جنگ کربلا کے
के बाद नौबत फिर नौबत हमारी जंग की। दुन ने हथियार रखे देख कर सरवर की जंग, और दुन का पैकर यजीद और सब के पैकर हुसैन। करबला में हो रही से मिंबर की जंग। बहुत अच्छा से अगर शबे हिजरत ना होता जान का खतरा कहीं, कुछ मुसलमान फूट लौटते चादरों बिस्तर की जंग। बाबा बुलंद हमारे बहुत ही खास दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, फैयाज रायबरेली। आज की मुनासबत से बस 5-6 शेर आप लोग तवज्जो करिएगा कि सुनिए। बाबा बुलंद नारे तलवार देखिएगा कि जाने क्या उम्मुल बनी ने कह दिया अब्बास। तसव्वुर शर्त है कि जाने क्या उम्मुल बनी ने कह दिया अब्बास से, उम्र भर दामन न छूटा शाह का अब्बास से, उम्र भर दामन न छूटा शाह का अब्बास से। और मेरा खतरा खतरा ताहिर हो गया अब्बास से, मेरा खतरा खतरा ताहिर हो गया अब्बास से। डूब कर कदमों में दरिया कह उठा अब्बास से। क्या कहने शेर मुलाहिजा हो कि मुस्कुराने का सलीका सीखिए बेशीर से, मुस्कुराने का सलीका सीखिए बेशीर से, और सीखिए बेतेग लड़ने की अदा अब्बास से, सीखिए बेतेग लड़ने की अदा अब्बास से। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह वाह। हो चुकी है 14 सदियां हो चुकी हैं शेर को बिफरे मगर, 14 सदियां हो चुकी हैं शेर को बिफरे मगर। आज तक सहमे हुए हैं अश्किया अब्बास से, आज तक सहमे हुए हैं अश्किया अब्बास से। जोश ने अमलाई ली कलियां ज़रा की खुल गई, जोश ने अमलाई ली कलियां ज़रा की खुल गई। जाने किसने कह दिया जिक्र विगा अब्बास से। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह 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 भाई माशाअल्लाह। बस है जनाब कासिम इब्न हसन की आज विलादत है। देखिए अभी काट कर अर्जा कसर कासिम ये बोले झूम कर, काट कर अर्जा कसर कासिम ये बोले झूम कर। मैंने सीखा है ये फन अपने चचा अब्बास से, मैंने सीखा है ये फन अपने चचा अब्बास से। और मक्ते का शेर कि बोझ मेरे ज़हन का फैयाज हल्का हो गया, बोझ मेरे ज़हन का फैयाज हल्का हो गया। मैंने अपनी मुश्किलों को कह दिया अब्बास से, मैंने अपनी मुश्किलों को कह दिया अब्बास से। तो एक 4 मिसरे मीर अनीस की रुबाई है और आज की तारीख की मुनासिबत से भी है। तो 4 मिसरे सुन के और फिर मैं जो हूँ अपने सदर साहब को दावत दूंगा कि वो मिंबर में आए कि कानून शरीयत का शनासा ऐसा, कानून शरीयत का मीर अनीस की रुबाई है तो उसको मीर अनीस के लिए भी सुनिएगा कि कानून शरीयत का शनासा ऐसा और कौशल भी तसद्दुक वो प्यासा ऐसा, कानून शरीयत का शनासा ऐसा और कौशल भी तसद्दुक वो प्यासा ऐसा। और क्यों ना फख्र से झूमे रसूले अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। कानून शरीयत का शनासा ऐसा और कौशल भी तसद्दुक वो प्यासा ऐसा। क्यों ना फख्र से झूमे रसूले अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। हो गया उसके साथ अगर मौला अब्बास का जिक्र ना हो तो बहन का जो है वो जिक्र पूरा रहता है। जनाब अब्बास जो है वो हमारे लखनऊ के शायर हैं, मौलाना शहीद लखनवी साहब, तो उनका एक शेर सुन लीजिए और जो है उसके बाद मैं साहब को एक सवाल पढ़े आप लोग। तो मुहर्रम का मंजर आप लोग याद रखिएगा जब जनाब अब्बास ने खत लिखा है उस मंजर को अपने ज़हन में रखिएगा, शेर सुनिएगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको कुछ ये भी समझ में आएगा और लुत्फ़ भी आएगा। अल्लाह रे अब्बास की हैबत लबे दरिया, वाह वाह वाह। अल्लाह रे अब्बास की हैबत लबे दरिया। ये मौला अब्बास के लिए जो है वो मौलाए कायनात ने दुआ करी है
तमन्ना करिए, तो उस तमन्ना को अपने दिल में भी रखिएगा। और उसके बाद ये शेर सुनिएगा कि मौलाए कायनात जैसा आदमी, मौलाए कायनात जैसा इंसान, कोई इंसान ही है, मौलाए कायनात जैसा इंसान जो है वो तमन्ना कर रहा है, जिसकी कायनात में पूरी मुट्ठी है और वो किसी चीज़ की तमन्ना कर रहा है, तो वो तमन्ना क्या होगी उसको ध्यान में रखिएगा कि अल्लाह रे अब्बास की हैबत लबे दरिया, आज तो हैदर की दुआ नाश करेगी। अल्लाह रे अब्बास की हैबत लबे दरिया, आज तो हैदर की दुआ नाश करेगी। और 2 लाख के लश्कर पे सुकून ऐसा है तारी, एक सुई भी गिर जाए तो आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि जब हम लोग, जैसे मैंने अपने पिछले गुज़िश्ता महफिल में कहा था कि छोटा सा गिरोह हमारा है, लेकिन फिर भी ये गिरोह जो है बहुत सारे गिरोहों पर काबू, बहुत सारे गिरोहों पर गिरा है, भारी और वो तमाम तारीखें महफिलों की। और उसके बाद फिर जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर गम को खुशी पर तरजीह दी जाती है। अब ये पूरा महीना बासादत का है और इसके बाद जो मैं फिर वो मेरे घर पर होकर मुझे गुजारिश है उसमें। और ये भी है कि काफिला करबला के लिए मदीना से निकल चुका है। जैसे कि मैंने किया कि हम गम को तरजीह देते हैं खुशियों को। अय्याम अज़ा के दिन 2-3 महीने के बाद जैसा भी होगा वो हम लोगों के सामने है। और फिलहाल जो भी बात है या जो नतीजे हैं उस सिलसिले से हम लोग बैठा हुआ है, उसके बाद इंशाअल्लाह उनमें जो है हम लोग खुशी करेंगे। मुझसे तो अब जनाब उरूज साहब के लिए अच्छा लगता है ये अंदाज का, ये अंदाज सुखन हमको उरूज। और दूसरे शेर का पहले से भी बेहतर होना और चंद अशार सही मैंने उसके अंदर कोई तबीयत नासाज थी, कुछ तैयारी नहीं की, तो चंद अशार और आपकी ज़रूरत तमाम कि जब वो सवाल करो करबला से मिलता है, दरे हुसैन से मांगो। और ये करबला है अंधेरे यहाँ नहीं बसते, यहाँ चला गले खुद हवा से, क्या कहने वाली यहाँ चला गले खुद हवा से बसता है। और कबूल होंगे ये सजदे, यकीन है मुझको कबूल होंगे। तो कबूल होंगे सजदे, यकीन है मुझको, ये सर नमाज में खाके शिफा से, नमाज में खाके शिफा से। और वसीला बन गई तस्बीह फातिमा ज़हरा, वसीला बन गई तस्बीह फातिमा ज़हरा के मशवरा भी हमें किबरिया से मिलता है, कि बहुत हसीन है वो इंतखाब खालिक का, बहुत हसीन है वो इंतखाब खालिक का, जो इंतखाब हदीस किसास से मिलता है। और कि सिखाई हमको अनीसो दबीर ने उर्दू, कि सिखाई हमको अनीसो दबीर ने उर्दू, वही अदब है जो फर्श अज़ा वही अदब है जो फर्श अज़ा से मिलता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। राहिब से पूछिए, कभी मित्र से पूछिए, राहिब से पूछिए, कभी मित्र से पूछिए। और कश्ती भंवर में हो तो किनारा हुसैन है, कश्ती भंवर में हो तो किनारा हुसैन है। और हैदर के आफताब हैं ज़हरा के महताब, हैदर के आफताब हैं ज़हरा का महताब। उनके नसीब का तो सितारा हुसैन है, उनके नसीब का तो सितारा हुसैन है। और ये फूल अभी किसी ने अपने शायर में बहुत अच्छा जिक्र किया था कि ये इमामत के तीसरे इमाम है, ये इमामत के तीसरे फूल है किसी आमिर भाई कि उनके नसीब का तो सितारा हुसैन है। और ये फूल
تیسرا ہے امامت کی شاخ پر، تیسرا ہے امامت کی شاخ پر، اور جس کو نبی پڑھے وہ سپارہ حسین، نبی پڑھے وہ سپارہ حسین، نبی پڑھے وہ سپارہ حسین ہے۔ زندہ باد۔ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، اور محسن میری نجات کا ضامن حسین ہے، محسن میری نظام کا ضامن حسین ہے۔ اس سے بات پڑھیں آپ۔ بطور خاص آپ لوگوں کو توجہ چاہوں گا، یہ شعر میں بہت بار گزارش کرتا ہوں ضائع نہیں کریے گا، بڑے اچھے شعر ہیں آپ لوگوں کی سماعت کی، زیادہ نہیں چند جی سوال کرتا ہوں۔ کہتی ہے خلق خدا طرز کلام ایسا ہو، کہتی ہے خلق خدا طرز کلام ایسا ہو، دل پکار اٹھے کہ امت کا امام ایسا ہو، امام ایسا ہو، اور ایک خطرے کا بھی احسان گوارا نہ کیا، اور کہیے گا ایک قطرے کا بھی احسان گوارا نہ کیا، اور قرب دریا کسی لشکر کا قیام ایسا تھا، قرب دریا کسی لشکر کا قیام ایسا تھا، اور بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، اور حق پرستی کا اگر ہو تو قیام ایسا ہو، حق پرستی کے سوا قیام اور کتنی صدیوں پہ شجاعت کے یہ پل بھاری ہیں، کتنی صدیوں پہ شجاعت کے یہ پل بھاری ہیں، اور کر گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، کر گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، اور سر پٹکتی ہوئی موجوں کا تلاتم نہ کہو، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو نہ کہو، یہ تو دریا کا انداز عزاداری ہے، ہے، اور سنانے درد میں ڈوبا کلام آیا ہے، سنانے درد میں میں نے عرض کیا تھا کہ قبلہ تو آقا حسین کے حوالے سے، سنانے درد میں ڈوبا کلام آیا ہے، حسین ابن علی کا غلام آیا ہے، اور گرے گے خیمے پہ بجھنے پہ کیوں کہیں چراغ خیمے کے بجھنے پہ کیوں کہیں جائیں، چراغ خیمے کے بجھنے پہ کیوں کہیں جائیں، ہمیں پسند شہادت کا جام آیا ہے، شہادت کا جام ہے کہ جزیریت کا وہیں پر جزیریت کے وہیں پاؤں لڑکھڑائے ہیں، جہاں جہاں بھی حسینی نظام آیا ہے، اور ہمارے خطیب جناب عامر صاحب کو میں سمجھ دوں گا تو میری تمہید کی کہ وہ آئے اور صلی اللہ محمد یہ دیکھیے 10:16 ہونا ہے، انشاءاللہ 10:25 میں آپ لوگ کی خدمت جو ہے وہ 14 منٹ میں انشاءاللہ آپ لوگ کی خدمت جو ہے لا حول ولا قوة الا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على نعمة الله وغاسل وقوفهم ومنكر فضائلهم وشجاعتهم سخاوتهم طهارتهم ولايتهم عظمتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد سيدنا نبينا شفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المظلومين المنتخبين المنتجبين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم كل وصلوك أجل إلا المودة في القربى صلوات شروع کرنے سے پہلے ایک
बात या इसको आप ऐलान समझ लें या इसको नसीहत समझ लें या कोई भी समझ लें, पिछले 2 साल से हालात ऐसे रहे और कोविड की वजह से जिससे सभी लोग इफेक्टेड हुए, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ हो। तो इस तरह जो है वो मजलिसें या महफिलें उस बुनियाद पर या उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस थी और कुछ फैमिलीज थी, बच्चे थे, तो वो कई चीज़ें थी। हर आदमी को डर थी, फिक्र थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो कुछ सिलसिला ऐसा बना कि कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाए और कुछ लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो एक गुजारिश आज लोगों से ये है, जो बड़े हैं उनसे गुजारिश ये है कि छोटों को माफ़ करें, और जो छोटे हैं उनसे गुजारिश ये है कि बड़ों को गले से लगाएं और एक दूसरे को जो है वो देखिए, हम चंद मुमकिन हैं यहाँ पर, ठीक है, यही 10, 15, 20 लोग, अगर उसमें से भी 2-4 कर जाएंगे तो नहीं बचेंगे। तो आप लोगों से मतलब किसी की बातों में मत आइए कि किसी ने ये कहा और किसी ने वो कहा और किसी ने ऐसा कहा और उन्होंने ये कहा उन्होंने वो कहा, तो इन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहिए। देखिए एक बात मैं कह दूँ, बाकी आप लोग सब समझदार हैं यहाँ पर, किसी से कुछ और कहने की बात नहीं है, सिर्फ एक जुमला और आप लोग की जो है वो जहमत तमाम। देखिए हमारा जो दीन है वो आकाओं का दीन है, बाबाओं का दीन नहीं है। अब कुरान मजीद की एक आयत जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि कुल्लो असलों का अजर अंदर मुवद्दत फिल कुर्बा। ए रसूल कह दीजिए इनसे कि हम आपसे अजर रिसालत के सिलसिले में कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत रखते हैं, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। देखिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे, हर पैगम्बर के साथ एक दीन भेजा और हर दीन के साथ एक शरीयत भेजी और हर शरीयत के साथ उसमें तब्दीली आती रही। तो कुछ पैगम्बर हमारे ऐसे हैं कि जिनकी उम्र बहुत सही, कोई 700 साल, कोई 800 साल, जनाब नूह कोई 900 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 75 साल, लेकिन जितने भी नबी आए वो सब तबलीग के लिए आए, सब दीन लेकर आए, सब अल्लाह का इस्लाम लेकर आए, सब शरीयत लेकर आए। इंसान जो था वो जाहिलियत के दौर में जी रहा था, इंसान को बैठना सिखाया, खाना सिखाया, बड़ों का आदाब, छोटों का लिहाज, दस्तरखान पे बैठना, कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या नजिस है, क्या पाक है, क्या तहारत है, सब कुछ सिखाया। और अल्लाह को ये सिखाने के लिए 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में भेजने पड़े। समझिए आप कितनी जाहिलियत रही होगी कि 1,24,000 अम्बिया जो है वो भेजने पड़े। और कुछ अम्बिया तो ऐसे जो 700 साल, 800 साल और 900 साल तक जो है वो तबलीग करते रहे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अम्बियाओं का जो है वो जाना होता रहा और आखिर में हमारे खत्मी मर्तबा लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो नबी उस वक्त से थे जब आदम जो है वो आदम के दरमियान थे। लेकिन अब जो ज़ाहिरी जो उनकी जो रिसालत है वो 23 साल की, जो तबलीगी ज़िंदगी जो है वो 23 साल की है। तो जो कुछ जितने भी नबी, जितने भी रसूल अपनी कई 100 सालों की ज़िंदगी में नहीं कर पाए, वो हमारे पैगम्बर ने 23 साल की तबलीगी ज़िंदगी में कर दिया। जो सारे नबी 800 साल, 900 साल, 1,000 साल की ज़िंदगी में नहीं कर पाए, वो हमारे नबी ने अपनी 23 साल की तबलीगी ज़िंदगी में कर दिया। और जो हमारे नबी ने 23 साल की अपनी तबलीगी ज़िंदगी में किया, उसे हुसैन ने एक दिन में बचा लिया। और क्या मांग रहा है अल्लाह उससे? अल्लाह क्या मांग रहा है? एक दिन में हुसैन ने बचाया। और अल्लाह मांग क्या रहा है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत, इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मांग रहा है। देखिए एक चीज़ होती है इल्म, एक चीज़ होता है फन, एक चीज़ होती है इल्म, एक होता है फन। इल्म क्या है कि भाई ये छोटे प्रोफेसर है, ये टीचर है, वो प्रोफेसर है, वो लेक्चरर है, ये है। तो जैसे जैसे इल्म में तब्दीली आती जाती है वैसे वैसे जो है बढ़ता चला जाता है। एक होता है फन, अब इसने ये कारपेट बनाई है वो भी एक फन है, ठीक है, कोई इससे अच्छी बनाएगा तो वो और बड़ा कारीगर, वो और बड़ा कारीगर। तो ऐसे इल्म होता है, छोटा होता है, एक टीचर है, स्कूल का टीचर है, यूनिवर्सिटी का टीचर है, दूसरा एक लेक्चरर है, और ये है, वो करते करते होता है, ठीक है। एक होती चीज़ इल्म और एक होता है फन। इल्म आता है पढ़ने से, इल्म आता है पढ़ने से, और फन आता है सीखने से। तो यही तो है, इसके अलावा तो और कोई जो है वो थ्योरी नहीं है ना। इल्म आएगा पढ़ने से, आप जितनी किताबें पढ़िएगा, जितना इल्म हासिल करिएगा, उतना आपकी जो है वो इल्म में इजाफा होगा। और फन आता है सीखने से, जितना आप सीखिएगा, जितना काम आप सीखिएगा, तो उसमें जो है वो फन है वो आप इतने बड़े कारीगर बन जाएंगे। तो इल्म आता है पढ़ने से और फन आता है सीखने से। लेकिन मोहब्बत ना इल्म में है ना फन में है, मोहब्बत ना इल्म में है ना फन में है। ना वो कोई सिखा सकता है उसको और ना कोई उसको पढ़ सकता है, ना कोई सिखा सकता है और ना कोई पढ़ सकता है। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो ना उसके पास इल्म होता है ना फन होता है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना इल्म होता है ना फन होता है, लेकिन मोहब्बत लेके आता है।
मोहब्बत लेके आता है। इसकी दलील क्या है कि सबकी गोद में रोएगा लेकिन माँ की गोद में चुप हो जाएगा। अभी ना उसने बोलना सीखा, ना उसने चलना सीखा, ना उसकी समझ में आ रहा है, उसको ईमान नहीं पता, उसको नबी नहीं पता, उसको रसूल नहीं पता, उसको दीन नहीं पता, उसको शरीयत नहीं पता, उसको फन नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि मोहब्बत कैसे करनी है। उसको ये पता है कि मोहब्बत कैसे करनी है। क्यों? अपनी माँ से मोहब्बत क्यों करता है? क्योंकि माँ के वसीले से उसको ग़िज़ा मिल रही है, माँ के वसीले से उसको ग़िज़ा मिल रही है। और जो ग़िज़ा है वो ग़िज़ा क्या है? वो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है ग़िज़ा कि अल्लाह ने बच्चों को माँ के वसीले से जो है वो नेमत को करार दिया। अब जिसकी नेमत, जो बच्चा बोलना नहीं जानता, जो बच्चा चलना नहीं जानता, उसके लिए नेमत कितनी बड़ी चीज़ है, ग़िज़ा कितनी बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह माँ के दर्जे को कितना उसने बुलंद किया कि ग़िज़ा के लिए उसने माँ को कहाँ पे रखा? तो जिसकी विलायत पे अल्लाह सारी नेमतें तमाम कर दे। अकमलतु लकुम दीनकुम व तमाम ही, हमने आज दीन को मुकम्मल कर दिया और नेमत को तमाम कर दिया। तो अल्लाह ने क्या मांगा? सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मांगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मांगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा। देखिए मोहब्बत आप जिंदगी में तो सीख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कोई कुरान नहीं, कुछ नहीं, हदीस नहीं, कुछ नहीं। एक मोहब्बत है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप ना उसको किसी किताब में देखिए, ना उसको किसी क्लास में देखिए, कहीं अपनी ज़िंदगी में देखिए आप मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मोहब्बत क्या है, आपको पता चल जाएगा क्या नाम। देखिए रसूलुल्लाह कुरान लेकर आए, ठीक है, रसूलुल्लाह कुरान लेके आए, इमाम हुसैन ने जो है वो दीन को बचाया, हमारे सारे इमाम आए, नबी आए, ये आए, वो आए। देखिए एक मोहब्बत क्या है, एक सवाल पढ़े आप लोग, फिर आप लोग 2 मिनट मुझे दीजिए, इंशाल्लाह आप लोग को मोहब्बत में क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आप लोग की ज़हमत तमाम हो जाएगी। मोहब्बत होती क्या है? देखिए अल्लाह ने हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को बराबर से नहीं बांटा। किसी के पास इल्म ज़्यादा है तो किसी के पास इल्म कम है, कोई ताकतवर ज़्यादा है तो कोई कमज़ोर है, कोई दौलतमंद है तो कोई गरीब है, कोई जिस्म बहुत अच्छा है तो कोई जिस्म जो है वो कमज़ोर है, कोई बहुत खूबसूरत है तो कोई बहुत काला है। कोई भी चीज़ दुनिया में बराबर नहीं है, कोई भी चीज़ बराबर नहीं है। अब अगर किसी दौलतमंद आदमी के या किसी रईस आदमी के 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं और वो अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, वो अपने बच्चों से प्यार कर रहा है। अब गरीब आदमी तो ये नहीं कह सकता अरे यार वो तो बहुत दौलतमंद आदमी है, उनकी तो हैसियत है अपने 10 बच्चों से प्यार करने की, मैं कैसे करूँ? आपने कभी ये सुना? कभी ये सुना किसी गरीब से कहते सुना कि भाई वो तो दौलतमंद है, उनकी तो हैसियत है, अपने 10 बच्चों से मोहब्बत कर सकते हैं, हम गरीब आदमी हम कहाँ अपने 10 बच्चों से मोहब्बत करें? नहीं, जितना अमीर अपने 10 बच्चों से मोहब्बत करता है उतना गरीब अपने 10 बच्चों से मोहब्बत करता है, होता है। अब जितना आलिम, एक आलिम है, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत बड़ा कुछ है, जो भी है, कहीं पे भी है, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो वो भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करेगा जितना जाहिल अपने 2 बच्चों से कर रहा है। जाहिल कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि वो तो बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, उनका तो हक बनता है अपने 2 बच्चों से प्यार करने का। मैं जाहिल आदमी, मैं कहाँ अपने 2 बच्चों से प्यार करूँ? कभी ऐसा नहीं होगा। या किसी भी चीज़ के लिए ले ले तो अल्लाह ने हर चीज़ को बराबर से नहीं बांटा, ना इल्म को बांटा, ना दौलत को बांटा, ना जिस्मानियत को बांटा, ना खूबसूरती को बांटा, किसी चीज़ को नहीं बांटा। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने सबको बराबर से दिया। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने सबको बराबर से दिया। हमारा जो चीज़ अल्लाह ने सबको बराबर से दिया है, अजर की हालत में वही मांग रहा है खाली, मुसलमान वो भी देने को तैयार नहीं है। जो चीज़ अल्लाह ने बराबर से बांटी है वो भी देने को तैयार नहीं है। अब तो लोग हमसे पूछते हैं कि मोहब्बत को किताबों में दिखाइए, इसमें दिखाइए, अहले बैत से मोहब्बत कहाँ सिखाए, कहाँ लिखा है? ये सब जो अहले बैत से मोहब्बत ना करने के जो है वो बहाने और कुछ जवाब देखिए हमारे रूम में जो है जंगे खैबर का जिक्र किया, मेरा मूड नहीं था, लेकिन आज जंगे खैबर में पढ़ के जाऊंगा चाहे तो, ठीक है। एक सवाल पढ़े आप, जंगे खैबर में हुआ, जंगे खैबर में हुआ ये कि तो आप लोग को पता है कि 39 दिन तक क्या होता रहा, झंडे आते रहे, बास आते रहे और होता। अब उसमें कुछ 2 हदीसें हैं। एक 2 हदीस तो ये है, उसमें लिखा गया है कि मौला अली वहाँ पे मौजूद नहीं है, और कुछ ने ये लिखा कि मौला अली वहाँ पे मौजूद थे। अब वो अलग की बात है, वो आलिमों की बहस है कि वो थे कि नहीं थे, वो जाने, वो उनकी बहस है, इतने ऊपर लेवल पे तो हम नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे काम की हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। सब आप देखिए मौला अली उस जंग में क्यों नहीं थे, आप ही समझ लीजिए। मौला अली जंग में इसलिए नहीं थे क्योंकि मौला अली की आंखों में तकलीफ थी, मौला अली की आंखों में वो तकलीफ थी, इसलिए मौला अली उस जंग में शामिल नहीं थे। तो लोग 39 दिन तक जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। आखिर में जब देखा कि कोई भी मसला नहीं है तो अल्लाह ने आवाज़ दी, जनाब जबरील वही लेके आए। क्या वही लेके आए? ना दे अरियन मज़ूद अजायब, ना दे अरियन मज़ूद अजायब, पुकारो उस अली को जो अजायबुल मज़हर है, जो अजायबों का जो है वो दिखाने वाला है, जो राज को खोलने वाला है। देखिए क्या है, ना अरियन मज़ूद अजायब, पुकारो उस अली को। पुकारना बुलाने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे जैसे बातें हो रही है,
यहाँ पे हम दो लोग बातें कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से भी बातें कर रहे हैं कि यहाँ तीसरे आदमी को ना सुनाई दे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इसमें सब महफिल है, सब सुन रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पुकारा जाता है तो खुशूर खुशूर नहीं पुकारा जाता है, किसी को अलग आवाज़ से पुकारा जाता है कि पुकारो उस अली को। इसका मतलब है कि मौला अली जो थे वो खैबर में मौजूद नहीं थे, इसीलिए जो है वो रसूलुल्लाह को वही नाज़िल हुई कि पुकारो उस अली को। तो पुकारने में और बुलाने में बहुत फर्क है। तो मौला अली को पुकारा गया। अब मौला अली जो आए तो वो किस शान से आए, मौला अली जो आए वो किस शान से आए। बीच में मौला कायनात है, एक तरफ जनाब पैगंबर है और एक तरफ जनाब सलमान है। मौला कायनात का एक हाथ जो है वो जनाब सलमान के कंधे पर है और मौला अली का दूसरा हाथ जो है जनाब पैगंबर के कंधे पर है। अब यहाँ पर देखिए हमारे जाकिर मुझे बहुत पुराने जाकिर हैं, मौलाना जाहिर हुसैन साहब, ये वो हैं जो मौलाना मिर्ज़ा अतर मोहम्मद साहब के उस्ताद रहे। अब आप समझिए कि इन्होंने मौलाना मिर्ज़ा अतर साहब को पढ़ाया हो तो वो शख्स कैसा होगा। तो उनका ये जुमला है और मैंने अतर साहब के मुँह से सुना, उन्हीं का जुमला है। तो वो कहते थे कि मौला कायनात जो है वो इस शान से दाखिल हुए कि एक हाथ जो है वो जनाब सलमान फारसी के कंधे पर और दूसरा हाथ जो है वो जनाब पैगंबर के कंधे पर, और एक तरफ दसवें दर्जे का ईमान, एक तरफ नवे दर्जे का ईमान, बीच में कुल्ले ईमान, बीच में कुल्ले ईमान। तो ये मौला कायनात को जो है अब क्या हुआ कि मौला क्या कहा गया, पुकारो उस अली को, पुकारो उस अली को जो मज़ुल अजायब है। देखिए हमारे पास इल्ज़ाम लगता है कि जो है देखिए अली को पुकारते हैं, अली को पुकारते हैं, अली को पुकारते हैं। अरे भैया हम पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लो, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। अल्लाह मियाँ वो खुद सब कुछ करे बैठे हैं, अल्लाह मियाँ तो खुद ही सब कुछ करे बैठे हैं, अपने होते हुए कह रहे हैं कि अली को पुकारो, और आप इल्ज़ाम हमारे पर लगा रहे हैं। आप